Hello students, today in this lecture we are going to learn about the IUPAC nomenclature of alkanes, alkenes and alkynes, and this is the third part of general organic chemistry. So let us start with this session. First we'll learn about the word root, chain length and word root. Chain length and word root. Chain length and word root. Chain length, if you have one carbon, then word root would be what? Mate. If you have two carbon, then eighth. Three carbon, then prop. Okay, and when you have four carbon, then bute. When you have five carbon, then pent. When you have six carbon, then hex. When you have seven carbon, then hept. When you have eight carbon, then oct. Nine carbon, then non. When you have 10 carbon, then deck. When you have 11 carbon, then undeck. When you have 12 carbon, then dodeck, and so on. Okay, so first we have to find out the word root, and word root, that depends on the chain length, that is known as the first we have to select the parent chain or root word. So next, in IUPAC nomenclature, we don't have to mug up the rules, we have to apply the rules. The more you are going to just read the rules for 10 to 15 minutes and then start applying those rules. Don't mug up those rules, don't try to remember those rules, just start applying. There may be mistakes when you are applying, but practice more and more. So first, in IUPAC nomenclature, first is the selection of the longest chain. Selection of the longest chain. So let us consider, we have two examples, 1 2 3. I am not showing hydrogen, मैं hydrogen आपके लिए show नहीं कर रहा. 3 4 and 5 and then 6 7 ऐसे attach किया मैंने और यहाँ पे. So this is the first example, and now this is second example. 2 3 4 5 and then like this. ये दो आपके पास कंपाउंड है और इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो अगर आप ऐसे आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया. और यहाँ पे अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, तो भी अगर आप यहाँ से कंसिडर करते हो, ऐसे जाते हो, ठीक है. सो ये आपके लिए लॉन्गेस्ट चेन है. ये 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है और ये 6 कार्बन का. देन यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 6 कार्बन. सो दिस इज द राइट वे ऑफ सेलेक्टिंग द. first you have to calculate the number of carbon, count the number of, just go through all possible chains. आप सभी तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करो. जहाँ से आपको लॉन्गेस्ट चेन मिलता है कार्बन का, दैट इज नोन एज द parent chain. So here we have the longest chain of 6 carbon atom. So word root would be what? That is hex. Word root would be of hex. Okay, next first we have to select the longest chain. Then
you have to find out the side chain, means the groups which are not included in the parent chain और longest chain are called क्या, side chain. मतलब जो longest chain में selected नहीं है, जो included नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, साइड चेन. जैसे ये देख लो आप, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये और ये. ठीक है. सो जो साइड चेन होते हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में नहीं होते. तो एक्सट्रीम ये वाला और ये वाला साइड चेन नहीं है, साइड चेन नहीं है. क्यों नहीं साइड चेन है, क्योंकि ये दोनों भी लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूडेड है. ठीक है. तो जब साइड चेन हमेशा क्या होगा, जो फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे नहीं आता, फर्स्ट कार्बन पे या लास्ट कार्बन पे या एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में साइड चेन नहीं आता है. वो पहले और लास्ट कार्बन को छोड़ के बीच में कभी होगा, कहीं पे होगा. तो ये आपको पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, फिर साइड चेन कहाँ पे लेना है, वो किसी बीच वाले कार्बन पे होगा. वो लास्ट और फर्स्ट कार्बन पे नहीं होगा, या फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट कार्बन पे जो अगर कार्बन ग्रुप अटैच हैं तो वो अल्काइल ग्रुप नहीं है. सो आप फिर इस केस में एग्जांपल के लिए, अगर इस केस में आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने फिर से मैं इसको लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिख दिया ऐसे, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये सर लॉन्गेस्ट चेन हो गया और इसको आप एक्सक्लूड कर दोगे, क्योंकि ये रॉन्ग है, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट कार्बन पे साइड चेन नहीं होते हैं. ओके. तो आपको कैसे इसको करेक्ट वे क्या है करने का, सो 1 2 3 4 5, सो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से इसमें, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया, नो साइड चेन, नो साइड चेन. तो आप ये नहीं कि सर ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये दोनों कार्बन हो गए. ओके. नेक्स्ट, third one. So you have to go for many possibilities when you are select the longest chain. You have to go through the all possible go through the all possibilities of longest chain. मीन्स अगर आपके पास एक कंपाउंड है और उसमें आपको हर तरह से उसमें काउंट करना कि लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पे मिल रहा है. ठीक है. सो अगर आपके पास एक कंपाउंड में दो लॉन्गेस्ट चेन आ रहे हैं, दोनों सेम कार्बन के आ रहे हैं 6 और 6 के, तो आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ क्या, साइड चेन ज़्यादा होंगे. इफ़ देयर आर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, द चेन विच पॉजेस क्या, मोर देन वन साइड चेन इज सिलेक्टेड. इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल, सो 1 2 3 4 5 6 and you have this compound like this and this. Okay, so you are understanding, I'm not writing hydrogen. so ये कंपाउंड आपके पास है, तो आप देखो जरा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का दिख रहा है. ठीक है. और यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का ही लॉन्गेस्ट चेन है. तो अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ, ये लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट में 6 कार्बन का, तो कितने साइड चेन मिलते हैं, 2 साइड चेन. ओके. लेट अस कंसिडर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपके पास मिथाइल था और फिर इस पोजीशन पे आपके पास सी एंड क्या, ये सी था आपके पास. तो अगर आपने ये स्ट्रेट चेन, फर्स्ट वाले में आपने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट किया था, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ. अब देखो, अभी आपके पास दूसरा चांस है कि आप यहाँ से सेलेक्ट करो, यहाँ से ये सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी 6 कार्बन ही आएगा. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने साइड चेन मिल रहे थे, 2 साइड चेन, और यहाँ पे कितने साइड चेन है, 1 2 and 3. So you have to go with this one because it has 3 side chain. So when you have an organic compound and you have more than one possible longest chain, then you have to select that longest chain which contain more number of side chain. Clear? मतलब आपको वो साइड चेन सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ साइड चेन क्या है, ज़्यादा है. अगर आपके पास एक ही कंपाउंड में 2 साइड चेन मिलते हैं तो आपको वो लॉन्गेस्ट चेन या आपको 2 लॉन्गेस्ट चेन मिलते हैं
तो आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ क्या साइड चेन ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट fourth one, the carbon which is attached with functional group must be included in the side chain selected respective of the length of the chain. So ये मैं पढ़ रहा हूँ एक जो रूल्स मेरे पास हैं। So अगर आपके पास एक लॉन्गेस्ट चेन है और उसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो अगर आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है किसी कंपाउंड में और उसमें फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो। उसमें फिर आपको कार्बन की चेन को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, फिर से आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपके पास एक 3 4 5 6 और यहाँ पे आपके पास एक कार्बन के साथ OH अटैच है, हाइड्रोजन मैं शो नहीं कर रहा हूँ भाई, और ये OH। ठीक है, अब दूसरा आपके पास देखो, दूसरा मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो ज़रा, ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6 और फिर से देखो, ये फिर से मैंने वही कंपाउंड बनाया है, ये देखिए। तो कौन सा आप लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ठीक है, अगर आप ये सेलेक्ट करोगे तो बोलोगे सर ये 6 लॉन्गेस्ट चेन है जो आप पहले बोला था आपने, बट इस लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप आपने सेलेक्ट नहीं किया। आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो सकता है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कम हो जाए, बट वो चलेगा, बट फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहाँ से उस कार्बन की चेन को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो अगर आप सिलेक्ट करोगे तो कितने कार्बन का आएगा, देखो यही आएगा ना, कितने कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन का। तो आपको ये राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, लॉन्गेस्ट चेन में आपने फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिया है। समझ में आया? तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, बट अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, इंक्लूडेड हो। ओके, लेट अस कंसिडर विद सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट मैंने क्या बोला, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। सेकंड क्या बोला, लॉन्गेस्ट चेन में भी वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ क्या साइड चेन ज़्यादा हो। और फिर तीसरा क्या, अगर लॉन्गेस्ट चेन है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें क्या इंक्लूड हो, फंक्शनल ग्रुप। सो सेकंड एग्जांपल, लेट अस कंसिडर यू हैव दिस वन 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आपने 6 और यहाँ पे आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया। अब इसी एग्जाम्पल को मैं फिर से लिख देता हूँ, 4 5 6 और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब आप मुझे बता दो, इसमें अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँगा तो कितने कार्बन का आएगा बेटा, 6 कार्बन का, 6 कार्बन का। बट ये राइट है नहीं, क्योंकि इसमें आपने डबल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं किया है। तो आपको फिर कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, फंक्शनल ग्रुप। सो दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, 4 कार्बन एटम्स। सो दिस इज द राइट वे ऑफ सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे आपका ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने इसमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करा है। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन? फोर वेज हो गए। फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। फिर अगर आपके पास लॉन्गेस्ट चेन में जो साइड चेन होते हैं वो फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे नहीं होते हैं। और इसके बाद मैंने बोला कि अगर आपके पास एक ही कंपाउंड में 2 पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन है तो आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ साइड चेन ज़्यादा है। और फोर्थ में बोला कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो, लाइक दिस वन। नेक्स्ट, अभी ये तो हो गया। अभी हम लोग करेंगे कि कैसे हम लोग नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग के लिए तो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का हो गया। अभी क्या नंबरिंग कैसे करेंगे? सो फर्स्ट वन, नंबरिंग फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्केन्स।
Saturated hydrocarbon means alkanes, carbon, saturated hydrocarbons. For saturated hydrocarbons, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए आप कैसे स्टार्ट करोगे बेटा नंबरिंग में फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो देखो जरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसमें एग्जांपल के थ्रू ही करते हैं. सो आपके पास ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैंने कर दिया आपको एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया लॉन्गेस्ट चेन में. सो अभी दूसरा देख लो आप इसका, यही सेम कंपाउंड दूसरे वे में देख लो 1 2 3 4 5, और फिर से आपने यहाँ पे लिख दिया CH3. तो नंबरिंग में कहाँ से करूँगा? उस एंड से करूँगा जहाँ से आपके साइड चेन को क्या मिले, साइड चेन क्या मिले, लोवेस्ट नंबर. सो दिस इज 1 2 3 4 5. अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करते हो तो मिथाइल गेट्स सेकेंड पोजीशन, and when we do numbering from 1 2 3 4 5 from right, then this methyl gets fourth position. So what we have to follow, we have to give lowest number to the side chain. So this is the right way, this is the right way, this is the wrong way of providing numbers to the side chain. Next, if you have compounds in which side chain are present at the same position, then you can give numbering from any side. मतलब अगर आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें साइड चेन लेफ्ट और राइट से सेम पोजीशन पे है, तो आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं, आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो. एग्जाम्पल के लिए यू हैव दिस कंपाउंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. सो सेकेंड पे मैंने मिथाइल ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और फिर से मैंने यही एग्जाम्पल लिया है और फिर से मैंने ये क्लियर कर दिया. तो आप नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये दोनों, ये यहाँ पे भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये भी मिथाइल है. तो आप किधर से भी नंबरिंग करो, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों राइट है, ठीक है. अगर साइड चेन क्या है, अगर साइड चेन सेम है तो आप किधर से भी नंबरिंग करो अगर उनके पोजीशन सेम आते हैं तो. जैसे इस केस में देख लो आपके पास साइड चेन में मिथाइल है, तो लेफ्ट से भी मिथाइल आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, राइट से भी सेकंड पोजीशन पे, 2 और 4 पोजीशन लेफ्ट से भी है, 2 और 4 पोजीशन राइट से भी है. तो आप किधर से भी नंबरिंग करो अगर साइड चेन क्या है, सेम है तो, ठीक है. आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, अगर आपके पास जो साइड चेन है वो डिफरेंट है, साइड चेन क्या है, डिफरेंट है, तो आपको नंबरिंग किधर से करनी है, उस साइड से करनी है जिधर से क्या मिलेगा, जो जिसको हमें हमें क्या फॉलो करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अगर आपके पास 2 साइड चेन है तो और वो सेम पोजीशन पे है, ठीक है, लेफ़्ट और राइट से, तो आपको उस अल्काइल चेन को प्रेफरेंस देना है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा. एग्जाम्पल देखो आप, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7. So at third position I am adding methyl, at fifth position I am adding CS2 CS3. फिर 1 2 3 4 5 6 7, and then here methyl and CS2 CH3. तो अब आप नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे कौन सा साइड चेन आपके पास, मिथाइल, सो M से स्टार्ट होगा. यहाँ पे कौन सा साइड चेन है, इथाइल, सो E से स्टार्ट होगा. तो अगर मिथाइल इथाइल है तो आप इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि E अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा. तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 6 7, ठीक है. तो अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँगा, इसको मैं ऐड कर दूँ मैंने थर्ड पोजीशन पे, तो अगर मैं नंबरिंग इसको स्टार्ट करूँ, नंबरिंग दूँ मैं इसको, तो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है ये फिफ्थ पोजीशन पे मुझे ऐड करना था, सॉरी, ये फिफ्थ पोजीशन पे ऐड करना है. ओके, मैंने थोड़ा सा एक पोजीशन आगे कर दिया. तो ये इसको क्या मिल रहा है, देखो
इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो मिथाइल को थर्ड और इथाइल को फिफ्थ मिल रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो इथाइल को थर्ड मिल रहा है और मिथाइल को फिफ्थ। बट आपको कहाँ से नंबरिंग करनी है, क्या फॉलो करना है आपको, नंबरिंग आपको कहाँ से करनी है, किसके साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। क्यों, क्योंकि ई जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो इथाइल को इधर से, इथाइल को लेफ्ट से थर्ड मिल रहा है, राइट से करने पे फिफ्थ पोजीशन मिल रहा है, फिफ्थ पोजीशन। और मिथाइल को लेफ्ट से स्टार्ट करूँगा तो इथाइल को थर्ड और मिथाइल को फिफ्थ। तो मुझे किस तरह से करना है, अब मुझे जब अगर दोनों साइड से दोनों को, अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ तो इथाइल को थर्ड मिलता है, राइट से स्टार्ट करता हूँ तो मिथाइल को थर्ड मिलता है, तो मुझे किधर से करना चाहिए, फिर मुझे क्या फॉलो करना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो इफ़ साइड चेन आर डिफरेंट, नंबरिंग इज़ गिवन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अगर आपके पास एक ही कंपाउंड में लेफ़्ट और राइट से दो अल्काइल ग्रुप को सेम पोजीशन मिल रहा है, दो अल्काइल ग्रुप हैं उनको लेफ़्ट और राइट से सेम पोजीशन मिल रहा है, तो आपको नंबरिंग किधर से करनी है, उधर से करनी है जिधर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा। तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को क्या करना है, प्रेफर करना है। ओके, क्लियर हो गया ये। फिर से इसको आप देख लेना एक बार, फिर से देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6 7। सो थर्ड पोजीशन मिथाइल और इधर से थर्ड पोजीशन पे क्या है, इथाइल। फिर मैंने थर्ड पोजीशन पे इथाइल और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल। सो 1 2 3, 3 पे मिथाइल है, इधर से करूँगा तो 1 2 3 पे क्या है, इथाइल है, यहाँ पे ई आ रहा है और यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे एम आ रहा है। तो मुझे किधर से करना चाहिए, तो मुझे क्या फॉलो करना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग द नंबरिंग, गिविंग द नंबर्स। ओके okay, next, in case you have this type of condition, 1 2 3 4 5 6 7 and methyl and 1, so you have, this is ethyl, you can write like this. Okay, and 1 2 3 4 5 6 7 and here you have CH2 CH3 and in this position you have methyl. So अब देखो जरा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, सो मिथाइल को सेकेंड पोजीशन मिल रहा है। और अगर मैं राइट से स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इथाइल को थर्ड पोजीशन मिल रहा है। मुझे किधर से स्टार्ट करना, क्या मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे नहीं है। यहाँ पे ये सेकंड है और इस केस में फर्स्ट वाले में मिथाइल सेकंड पे है और इथाइल फिफ्थ पे है। और जब मैं सेकंड वाली चेन कंसिडर करता तो इथाइल को थर्ड पोजीशन मिलता है, तो पोजीशन दोनों का सेम नहीं है। पिछले वाले में क्या था, दोनों लेफ्ट और राइट से थर्ड पोजीशन पे थे, तो फिर मुझे क्या फॉलो करना था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे मिथाइल को ऑलरेडी वो सेकंड, अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूँगा तो उसको सेकंड पोजीशन मिलेगा। तो मुझे क्या देना है, अगर वो दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं तो मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं करना। इन केस अगर दोनों सेम पोजीशन पे होते, सेम पोजीशन का मतलब ये वाला कंडीशन जो ये आप ऊपर आपने पढ़ा, यहाँ पे दोनों क्या था, इस कंडीशन में मिथाइल को यहाँ से थर्ड पोजीशन मिला था, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे इथाइल को थर्ड पोजीशन मिला था। तो फिर आपको क्या फॉलो करना था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बट यहाँ पे पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पे मिथाइल को सेकंड है और इथाइल को थर्ड है, तो फिर मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इन सबको नोटबुक पे लिख लिख के फिर प्रैक्टिस करना, ये वीडियो पॉज करके इसको प्रैक्टिस करना, तभी ये हो पाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नाउ ये पूरा हो गया। क्या 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 किया हम लोगों ने कि फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। फिर अगर आपको साइड चेन सेलेक्ट करना है तो साइड चेन एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में नहीं होता, मतलब लास्ट वाले कार्बन पे नहीं होता, उनको हम साइड चेन नहीं मानते हैं। और नेक्स्ट
अगर आपके पास एक ही कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन दो पॉसिबिलिटी है, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है लॉन्गेस्ट चेन की, तो आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना जिसमें नंबर ऑफ साइड चेन ज़्यादा होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट था कि अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता हो, जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। आपको ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं करना जिसमें फंक्शनल ग्रुप बाहर हो जाए उसको, ठीक है। और तीसरा था नंबरिंग कैसे करनी है। नंबरिंग आपको उस साइड से करनी है जिससे सबको क्या मिले, लोएस्ट नंबर, जो भी साइड चेन प्रेजेंट हो उसको लोएस्ट नंबर मिले। हाँ, अगर आपके पास सेम पोजीशन पे लेफ्ट और राइट से सेम पोजीशन पे सेम अल्काइल ग्रुप सेम टाइप का साइड चेन प्रेजेंट है तो आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद था कि अगर आपके पास एक कार्बन की चेन है, उसके लेफ्ट और राइट से स्टार्ट करने पे दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप अटैच है सेम पोजीशन पे, दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है सेम पोजीशन पे, तो आपको प्रेफरेंस किसको देना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। और अगर आपके पास एक और लास्ट वाला जो आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो और दो अल्काइल ग्रुप हैं बट दोनों का पोजीशन क्या है, अलग अलग है, तो आपको वो उस एंड से नंबरिंग करनी है जहाँ से आपके अल्काइल ग्रुप को क्या मिले, लोएस्ट नंबर, जैसे अभी आपने लास्ट में किया, ठीक है, आपने लास्ट पे किया, उसको आप ध्यान दे देना, ठीक। नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू एग्जाम्पल्स। लेट अस कंसिडर वी हैव दिस एग्जाम्पल फर्स्ट। ये आपके पास एग्जाम्पल है। तो अब मुझे इसका, मैंने 5 कार्बन और यहाँ पे मेरे पास है मिथाइल, तो इसका नेमिंग किधर से करूँगा, इधर से तो करूँगा नहीं। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मुझे किधर से नंबरिंग करनी है, जहाँ से मेरे साइड चेन को क्या मिले, लोएस्ट नंबर। सो व्हाट वुड बी द आंसर, 2 मिथाइल। देखिए पोजीशन भी आपको शो करनी है, 2 मिथाइल, फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल एंड दिस नंबर एंड दिस लेटर मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डैश। सो दिस इज 2 मिथाइल। लॉन्गेशन कितने कार्बन का है बेटा, लॉन्गेशन कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का, तो 2 मिथाइल 5 कार्बन के लिए पेंट, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो यू हैव टू ऐड व्हाट, एन फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैंने आपको एक रूल बोला था, वो जब जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, पहले आपको क्या ऐड करना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फॉलोड बाय, फिर क्या लिखना है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। ये मुझे फॉलो करना, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। सो लेट मी एक्सप्लेन 1 डिग्री 2 डिग्री सफिक्स। उसका मैंने डेफिनेशन आपको ऑलरेडी भेजा है। जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है वो कभी आप यूज़ करोगे इन केस ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स। अगर आपके पास साइक्लो कंपाउंड है देन यू हैव टू यूज़ 1 डिग्री प्रीफिक्स, बट यहाँ पे साइक्लो कंपाउंड नहीं है तो 1 डिग्री साइक्लो कंपाउंड होगा, जैसे ये ऐसे लिखा हुआ ये, तो ये इस यहाँ पे अगर मुझे इसका नेमिंग करना होगा तो इसमें कितने कार्बन है, 3, बट ये साइक्लिक कंपाउंड तो मुझे 1 डिग्री प्रीफिक्स का लिखना होगा, साइक्लो 3 कार्बन के लिए प्रोप, साइक्लोप्रोप, तो ये हो गया 1 डिग्री प्रीफिक्स और ये हो गया आपका वर्ड रूट। और फिर क्या देखूंगा, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्डेड है, तो लास्ट में क्या ऐड करूँगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, एन। सो कहने का मतलब ये है कि जो बेटा आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स है वो कभी यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव साइक्लिक कंपाउंड्स, एंड 1 डिग्री सफिक्स कभी यूज़ करते हैं, 1 डिग्री सफिक्स to determine compound is saturated or unsaturated। तो बार बार आप एन लिखते हो तो 1 डिग्री सफिक्स, वो वर्ड रूट के बाद जो आप लिखते हो वर्ड रूट के बाद जो 1 डिग्री सफिक्स लिख रहे हो वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो कंपाउंड है वह सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। तो
अगर सिंगल बॉन्ड, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे हम लोग, एन। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे। सो अगर सैचुरेटेड है तो 1 डिग्री सफिक्स क्या आएगा बेटा, 1 डिग्री सफिक्स विल बी व्हाट, एन। अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड में भी दो हो सकते हैं, कौन सा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सो क्या लिखेंगे, इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, वाई एन ई। क्या लिखने वाले हम लोग, वाई एन ई, वाई एन ई। सो 1 डिग्री सफिक्स tells us about the saturated or unsaturated, tells us about the saturated or unsaturated, saturated or unsaturated, saturated or unsaturated what, compounds. So आपको प्रॉब्लम नहीं है, रूट वर्ड लिखा फिर देख लिया सैचुरेटेड क्या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड है तो एन ऐड कर दिया, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। और जो 1 डिग्री प्रीफिक्स वाली बात मैंने की थी, 1 डिग्री प्रीफिक्स वाली बात, ये कभी ऐड होगा, ये जब मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड होगा तो 1 डिग्री प्रीफिक्स ऐड करेंगे, और 1 डिग्री सफिक्स कभी ऐड करेंगे ये बताने के लिए कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ अनदर एग्जांपल। 2 डिग्री, हाँ 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स दैट टेल्स अस अबाउट द साइड चेन, साइड चेन, साइड चेन। and 2 degree suffix, suffix functional group, functional group, functional group. Okay, clear to all of you? Next, let us consider second example. You have this compound, you have this compound, so now you are adding here methyl and here you are adding ethyl. Both are at 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5. लेफ़्ट से इसको सेकंड पोजीशन, राइट से इसको सेकंड पोजीशन, दोनों सेम पोजीशन पे हैं लेफ़्ट और राइट से, तो हमें क्या प्रेफरेंस देना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये ई से स्टार्ट होगा, ये एम से, तो इधर से फॉलो करना है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दोनों का पोजीशन सेम है लेफ़्ट और राइट से, तो हमें क्या फॉलो करना है फिर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं सेम पोजीशन पे। ये सेकंड पोजीशन पे है राइट से, ये सेकंड पोजीशन पे है लेफ़्ट से, तो किधर से मैं नंबरिंग करूँ, जिधर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को मैं क्या करूँगा, फिर उधर से स्टार्ट करूँगा जिधर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या हो, पहले आता हो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को मैं प्रेफरेंस दूंगा, यानी का मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को मैं प्रेफरेंस दूंगा। ओके, अब इस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मैं आता हूँ किसके साथ, अदर कंपाउंड के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो फंक्शनल ग्रुप का जो मैंने इसके पहले वाला दिया था आपको लेक्चर सेशन, ये वीडियो दिया था, उसमें आप फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचानते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, ये सबको एक बार आप क्या करो, उनको एक बार फिर से आप उसको नोटबुक पे प्रैक्टिस करो, और फिर ये जो रूल्स मैंने दिखे हैं इसको बार बार वीडियो पॉज करके फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आप क्या करो, फिर से इसको देखो कि क्या क्या सर ने बोला है और कैसे कैसे मुझे फॉलो करना है। तो ये एक बार क्लियर हो गया तो फिर यही हम किस में अप्लाई कर लेंगे, फंक्शनल ग्रुप में। सेम कॉन्सेप्ट हम फंक्शनल ग्रुप में भी अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। ओके बेटा, सो दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।